I'm going to address a sensitive topic. It's too sensitive, और मैं sensitive इसलिए कह रही हूँ because here lies our future. Okay, so when I talk about present and future, as a parent, what is our responsibility? We are just losing the focus from our main responsibility. Okay, तो ऐसा क्यों हो रहा है? Why there is no attachment between children these days with their parents or vice versa? I'll tell you, जब मैं टॉपिक ले भी रही हूँ तो आई एम फीलिंग सैड विद इन, क्योंकि ये इश्यूज 95% फैमिलीज में हो रहे हैं. एंड व्हाई एम टेलिंग दिस 95%? बिकॉज ये जो 95% इश्यूज है, इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट. एक्सट्रीमिस्ट कहाँ पर हो रहा है? When we talk about children, आज के बच्चे they want to give a lot to their parents in terms of support emotionally, as well as they want them to be independent. Okay, so here I'm addressing children from upper, like when they started going to school or even before that. हम क्या कर रहे पेरेंट्स? हम सिर्फ ये मोह माया के जाल में फंस गए हैं. हमें आजकल फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या एनी न्यूज चैनल में हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए. बट व्हाट अबाउट द क्वालिटी टाइम दैट यू वांट टू स्पेंड इट विद योर चिल्ड्रन? इज दैट नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? ओके, और मैंने ये बहुत बार देखा है कि देयर आर टू कैटेगरीज. वन इज लाइक मदर बीइंग अ होम मेकर एंड मदर हु इज अ वर्किंग लेडी. ओके, ये ज़्यादा इश्यूज तो होम मेकर मदर्स में ज़्यादा है, बिकॉज दे सी दैट हमें तो इतना सारा काम है, घर पर इतना सारा काम है दैट हम टाइम ही नहीं निकाल पाते. ओके, एंड वो ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज दे डोंट मैनेज देयर टाइम, दे डोंट मैनेज इट. आई वुड से द डिफिकल्टी इज मैनेजिंग अ टाइम, नॉट अबाउट टेकिंग टाइम. ओके, अगर बात करूँ एनी बिग personalities like maybe Amitabh Bachchan or Ratan Tata or anybody in that matter, or a principal of a school. A principal doesn't have their own family. वो स्कूल में कैसे आती है? टीचर्स कैसे स्कूल में आती है? Okay, so now you understand that they also manage their family as well as their own life, right? So as a mother, maybe a working lady or a homemaker, please ensure that you take quality time for your children, because that is your production. Okay, और ये बहुत बार मैंने देखा है कि जब भी बच्चों को तो स्कूल तो आजकल लाइक 2-3 बजे तक तो उनका स्कूल रहता है, ये मॉर्निंग 8 से लेकर 3 o'clock तक, 2-3 o'clock तक, तो राइट. उसके बाद क्या, वंस दे कम बैक फ्रॉम स्कूल कुछ स्नैक्स खा लेते हैं एंड देन अगेन दे रनिंग फॉर ट्यूशंस. Even I've seen like kids like a nursery child, LKG, UKG, even first, second standard, pre-primary kids are going for tuitions. और reason क्या है parents की तरफ से कि our children do not listen to us. Is that the reason that the children do not listen to you, or is that the way that you are not paying attention to your children's needs? Right? हम क्या कर रहे हैं? Okay, are we like responsible enough to take that additional responsibility of teaching as well? और हम सोचते कि नहीं वो देख लेगा, ये देख लेगा. नहीं, I would say that wherever your presence are required, children need you. They need your presence. They need your support. हमें कैसे कर सकते? First important thing that you can plan a day is make a schedule. अगर बच्चे 8 बजे चले जाते हैं, आजकल देखिए, अगर बात करूँ कि there are a lot of like old times also currently there are a lot of people who are doing farming are like supported by their wives. So farming husband wife दोनों मिलकर भी करते हैं. Okay, so how do they manage it, right? With giving a good education to the children. बच्चे खुद से पढ़ सकते हैं, but they need some guidance and mentorship. Okay, which is lagging in these days. तो Gen Z children का यही problem है that they are more they are unable to make decisions. They're confused, rather being confused because we are not giving proper mentorship to our children. Okay, तो मैं यहाँ पर की पॉइंट्स आपको बोलना चाहती हूँ एज अ काउंसलर
where I've done a lot of successful counseling, okay, and I'm a mother myself. So I would like to tell you that when you deal your day, ensure that आप एक शेड्यूल बना दे, एक शेड्यूल ऐसे बनाए कि आज को तो 24 आवर्स पानी है, बिजली भी 24 आवर्स है, सो यू हैव ऑल्सो नीड ऑल्सो हु इज डूइंग द बेसिक टास्क एंड तो ज्यादा भी ये नहीं है, लाइक देयर इज नो मच ऑफ बर्डन बिकॉज यू हैव प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर वाटर, सो देयर इज नो स्कैरसिटी एज सच, ओके। तो अगर वॉशिंग मशीन तो सबके घर पर है, राइट, सो हाउ मच डज इट टेक, आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं इजीली। ब्रेकफास्ट बनाने में 1 आवर, बच्चे स्कूल गए, ब्रेकफास्ट आपका रेडी, आपका भी ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, ओके। सो देन डू योर ड्यू डिलिजेंस, यू आल्सो डू योर ओन एक्टिविटीज। अगर आपको कुछ करना है खुद का तो कीजिए, इफ यू वांट टू डू सम एक्सरसाइज, जॉगिंग, व्हाटएवर, और योगा, डू दैट, ओके, और लिसन टू म्यूजिक जो आपको पसंद है। सो दैट इज व्हाट इज योर लाइफ, इट्स नॉट ओनली रिवॉल्विंग अराउंड द फैमिली, आपका भी खुद का भी एक आइडेंटिटी है, राइट। सो आपको जब आप एनर्जाइज्ड रहोगे, सो यू कैन पास द सेम एनर्जी टू योर चिल्ड्रन, right, and to your family as well, to your spouse, to your parents, to your in-laws, everyone. So please ensure that you are energized, you're fulfilling your interest so that you can pass it down, okay. So yes, so now coming back to the schedule, breakfast 1 घंटे में बना दिया, आप बच्चे स्कूल चले गए, सब कुछ ठीक हो गया, okay. Being a working mother, you will also take your own tiffin box, right, so that is done. So what happens later that वॉशिंग मशीन एक तरफ चलता है फॉर होम मेकर्स, एक तरफ अगर मेड रही तो वो तो बर्तन धो लेगी, नहीं तो आप कर लोगे, वो कितना टाइम लगता है, हाफ एन आवर, दैट्स इट। देन क्लीन द हाउस, मोर हाफ एन आवर, सो आई थिंक, एंड देन 2 आवर्स हो गया उसका, ओके। एंड देन वॉशिंग मशीन एक तरफ चल रहा है, आपका ये एक तरफ चल रहा है, सो आपका एक टाइम पे दोनों जॉब हो रहे हैं, कुकिंग एक तरफ, वॉशिंग मशीन एक तरफ, ओके, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लंच and cleaning the house. This all 3-4 tasks will take only 2 hours, not beyond that, okay. Then if you feel like doing some stitching, some embroidery, do it, okay. So इससे आपका टाइम बच गया। मेरा कहना ये है कि जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं या they come by 2:30 or 3 o'clock or 4 o'clock, please ensure that you complete all your household tasks by that time. Before they come, take care of yourself also. Do your daily routine, everything before they come, even an hour before. आराम से आप nap भी ले सकते हैं, you can take a 1 hour nap, that's it, okay. Because we are so busy in social media channels, we do not have time for our family, okay. हमें ना शाम, मैंने बहुत सारे मदर्स को देखा है जो बच्चों के आने के बाद ही वो लोग काम करना चालू करते हैं किचन में, या तो फिर वो लोग तब जाके कपड़ा वॉशिंग मशीन में डालते हैं, तब जाके सुखाते हैं। क्यों ऐसे करना है? इन द मॉर्निंग द मेड विल कम एंड द एंटायर डे व्हाट यू आर डूइंग, आई डोंट नो। सो यू हैव सो मच ऑफ टाइम, प्लीज एंश्योर दैट यू यूटिलाइज योर टाइम फ्रूटफुली, राइट। ये थोड़ा आपको बुरा लगेगा बट इट्स ओनली अबाउट प्लानिंग, ओके। व्हेन यू प्लान प्रॉपर्ली, मैं उसका आउटकम बताना चाहती हूँ, व्हाट विल बी द आउटकम फॉर दिस, ओके। व्हाई एम आई इवन टेलिंग यू दिस वन? अगर आपने आपका प्लानिंग सब आपका लंच वन सब बनाकर आपका 2 बजे तक होगा, पूरा घर का काम सारा का सारा, आपका रेस्ट भी हो गया 2 बजे, देखिए 8 बजे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बस 2 बजे तक पूरा टाइम है आपके पास, तो पूरा आपका आराम से होकर भी आप एक मूवी भी देख सकते हो, यू हैव सो मच ऑफ टाइम, ओके। सो वंस यू डू दैट, then by 2-3 o'clock the kids will come, spend the entire from 3 o'clock till they go to sleep till 10 o'clock, you have entire 6 to 7 hours for them. कैसे कर सकते हो आप? तो यू सी व्हाट इज हैपनिंग इन स्कूल, आपको ये बात करना, अच्छा आज का दिन कैसा रहा, क्या क्या किया, क्या क्या, मतलब नॉट ओनली अबाउट स्टडीज, डिड यू हैव अ लंच, डिड यू एंजॉय लंच, आपने शेयर किया, सो टॉक अबाउट, जस्ट स्पीक अबाउट। बच्चे वेट करते हैं कि पेरेंट्स कब अपना कीमती समय होने दे, एंड द ओनली रीजन दैट आई हियर फ्रॉम पेरेंट्स, मैं सारे व्हेन आई डू काउंसलिंग फॉर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, देन आई हियर दैट बच्चों से एक ही बात सुनने को मिलता है कि मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि दे आर बिजी, दे आर बिजी, दे आर बिजी, बिजी विद योर वर्क, बिजी विद योर हाउसहोल्ड वर्क। व्हाई इज दैट सो? टेक्नोलॉजी है, इट्स ऑल सपोर्टिंग यू, दैट विल मेक यू मोर एफिशिएंट, राइट, मोर इफेक्टिव, रादर वो उल्टा कर इनएफिशिएंट बनते जा रहे हैं आजकल, तो व्हाई इज दैट सो, राइट? So please ensure that as soon as the kids are from school, you're spending the entire 6 to 7 hours with them, a quality time with them. You sit with them, check their homework, sit with them, understand what difficulties they have, what challenges they have. उनको लगता है
कि मुझे स्पेलिंग में दिक्कत हो रही है मम्मा, मुझे बताइए कैसे करना है, मुझे थोड़ा राइटिंग स्पीड इंक्रीज करना है, कैसे करो बताइए। सो दैट कम्स विद एक्सपीरियंस। आजकल सारे पेरेंट्स मिनिमम तो ग्रेजुएट्स है ही है, आई एम श्योर अबाउट इट, राइट। जेंजी चिल्ड्रन को सारे के सारे ग्रेजुएट पेरेंट्स मिले ही है, डिप्लोमा और ग्रेजुएट्स, आई एम श्योर ग्रेजुएट्स है सारे के सारे पेरेंट्स, राइट। सो व्हाई डोंट यू शेयर योर एक्सपीरियंस विद देम कि हमने कैसे पढ़ाई किया, एंड मिक्स कर लो आप तो कि एक है ना कन्वेंशनल एंड दी मॉडर्न मेथड्स। कन्वेंशनल जैसे ओल्ड टेक्निक्स, आपने कैसे अपना हैंडलिंग स्पीड अप किया है, आपने कैसे स्पेलिंग अंडरस्टैंड किया है, शो सम टेक्निक्स टू देम। अगर आपको कुछ सीखना है, इफ यू वांट टू रीब्रश योर स्किल्स, आपके पास यूट्यूब है, go through some YouTube, beautiful channels are there who teach you beautifully. Get some key pointers and share, make a list of that, make a note of it in your notepad, keep a separate diary or a notepad as a parent as well, and make a note of few pointers. आपको भी फिर ध्यान में आए कि मुझे कहाँ पर एम्फोसाइज करना है, कहाँ पर फोकस करना है। फिर बच्चों को ट्यूशन जाने की जरूरत ही नहीं है, तब कैसे कर सकते हो। ट्यूशंस में क्या होता है कि 20-25 बच्चे आते हैं, ओके, फ्रॉम सीनियर केजी LKG से लेकर 10th 12th तक के बच्चे आते हैं, 20-25 किड्स। हाउ विल वन टीचर मैनेज ऑल द सब्जेक्ट्स विद योर चिल्ड्रन एज वेल? जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक। जहां पर हम स्कूल में एक क्लास में 30 बच्चे सेम क्लास के सेम एज ग्रुप के सेम सब्जेक्ट्स पढ़कर भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे, हाउ कैन दैट 2 hours of tuitions with all students, all subjects will sit together and learn anything? It's just like you're shooing off your children. अरे तू चल निकल, तू घर से निकल। It's not that way. Don't do that, please. बच्चे disheartened है, okay? Because parents are upset. They want that आप जाओ ट्यूशन में जाकर देखो, आपको ना सिर्फ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज झटकना है। डोंट डू दैट एवर आफ्टर, ओके? टेक ओन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। अगर आप फेसबुक में थोड़ा नहीं देखेंगे तो कोई दोस्त नाराज नहीं होता है, ओके? अगर आपने कुछ देखा नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, बट आपके बच्चे आपके पास है। सो दैट इज द रीजन दैट दे आर इमोशनली गेटिंग डिस्कनेक्टेड विथ यू ऑल, एंड इमोशनली जैसे डिस्कनेक्ट हो जाएगी, दे विल आल्सो गेट, आप फिजिकली डिस्कनेक्ट कर रहे हो, वो लोग इमोशनली भी हो जाएंगे, फिजिकली, एवरीथिंग। दे जस्ट वांट टू गेट अवे फ्रॉम यू, दैट एज यू वांट टू गेट अवे, दे विल आल्सो गेट अवे फ्रॉम यू। सो प्लीज एंश्योर दैट कंप्लीट योर टास्क्स, सिट विद देम, जस्ट सिट विद देम। वो कुछ नहीं करना है, वो खुद आप बताइए, उनको गाइड कीजिए कैसे पढ़ना है। और मैथ्स के लिए हो जाए, साइंस के लिए हो जाए, बहुत से यूट्यूब चैनल्स है, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ऑनलाइन टीचर्स, ओके? अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए इस पे भी कि ये क्लास के लिए, ये सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर आप रेकमेंड कर रहे हो, इवन कम्युनिकेशन, इंग्लिश, जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज और हिस्ट्री, SST, किसी में आपको लगता है कि कौन सा चैनल आपको बेस्ट लग रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको बताती हूँ कौन से चैनल्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। आई विल रेकमेंड यू सब 3-4 चैनल्स, लेकिन आपको जैसा ठीक लगा आप भी थोड़ा रिव्यू कर लीजिए एज अ पेरेंट। और ये चैनल्स हो गया, आई विल टेल यू प्रिसाइसली, कोई ना कोई चैनल सिर्फ इंग्लिश में सिखाते हैं, कोई ना कोई चैनल्स कॉम्बिनेशन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, अगर आपको हिंदी आती है या तो फिर तमिल आता है, लोग वो सब्जेक्ट जो है आपको इंग्लिश में ही रहेगा, बट वो सिखाएगा आपको हिंदी में या रीजनल लैंग्वेजेस में। दैट ऑल्सो बेनिफिट्स, बिकॉज एग्जाम आपको करना ही क्या है, आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, यू हैव टू फ्रेम योर ओन सेंटेंसेस। आप उनको सर समझा दे, आपको सिर्फ गाइड करना बच्चों, अरे बच्चा चल तू अपने आप है ना फ्रेम कर सेंटेंसेस, आई एम देयर फॉर यू। बस आपका ये जो एक सेंटेंस है ना, आई एम देयर फॉर यू, बस दैट्स इट, दैट विल मेक द डिफरेंस। उनको लगता है कि हाँ पेरेंट्स मेरे साथ है, ओके? सो फ्रॉम नाउ ऑन, सो प्लीज वॉट एवर सपोर्ट यू नीड, राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई एम गोइंग टू रिप्लाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रॉपरली, ओके? दैट इज माई ओनरशिप। तो देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स फॉर यू टू लर्न एनी सब्जेक्ट। मैं क्यों चाहती कि पेरेंट्स का प्रेजेंस होना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं विद सोशल मीडिया, किड्स दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर वेरी, अभी तक वो एकदम इमेच्योर है, दे आर नॉट मैच्योर्ड स्टिल, सो वो भी डिस्ट्रैक्ट होने का चांसेस उनका बहुत ज्यादा है। सो अगर आप पास रहोगे, आप उनके साथ रहोगे टू मॉनिटर, टू गाइड देम, सो दे विल नॉट लूज द फोकस, दे विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो आप देखो अरे क्या चल रहा है, चलो ये सिखा रहा हूँ, कैसे सिखा रहा है, तो आप भी सीख जाओगे। वो जो वीडियो चल रहा है ना, आप भी वो सब्जेक्ट को सीखना चालू करोगे।
In that way, the children will also feel proud about their parents कि उनको भी सारा knowledge आ रहा है. Getting it? And then you start asking questions. You can also help them in their homeworks. अच्छा homework में कैसे करना है? They will be independent themselves. आपको सिर्फ उनके साथ टाइम बिताना है. Okay? As I told you, आप मुझे अगर आप चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट का ये क्लास का मुझे कौन सा वीडियो रिकमेंड करते हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी. Okay, in the comment section, I'm going to respond to you on that. As a parent, if you're watching it, or as a children, any one of you, I'm there for you to mentor for a better and improved life. Okay? And जहां जहां आपको दिक्कत आ रही है, कैसे पढ़ना है, कैसे प्लान करना है, let me know. Alright, I can plan for you. And if you also want to have one-on-one discussion with me also, we are okay for that. Okay, so I'm doing that counseling part. So let me know if you want to have one-on-one discussion also, we can do it. Alright, sure. Thanks so much for watching this, and have a better and a happy life, and stay blessed. Thank you.